नमस्कार साथियों। आज हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी आपको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। ये अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। और आज वेणुगोपाल जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो रिलीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक पन्ने का चार्जशीट है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, उसका भी वो रिलीज करेंगे। पहले ही मैंने राहुल जी की जो खत है जो हर घर पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर, वो पहले ही मैंने रिलीज किया है। तो आज लोगो और चार्जशीट वेणुगोपाल जी रिलीज करेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में आपको संबोधित करेंगे। रश जुमला पार्टी, कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ एक करने का। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ। वेणुगोपाल जी सब लोग। Good morning, brothers. Our Bharat Jodo Yatra is on its final phase. 19th evening we entered in Jammu, and coming 8 days Bharat Jodo Yatra is in final phase in Jammu and Kashmir. Padayatra, this Padayatra party will be over on 29th January. '27, 28, 29, these 3 days, Yatra will be in Kashmir Valley. Till 25th we will be in Jammu region. 30th is the culmination of this Yatra. 30th morning 10 o'clock, our leader, Bharat Jodo Yatra ka leader Rahul Gandhi will hoist the national flag in Jammu Kashmir PCC office 10 o'clock, 30th morning 10 o'clock. 11 o'clock onwards we will start the public meeting. Public meeting will be Sher-e Punjab Cricket Stadium in Srinagar. When Rahul Gandhi ji hosting the national flag at 10 a.m. in Srinagar, Jammu and Kashmir PCC office, the same time all over India, entire district committee will do the same program. They will host the national flag in respective district all over India. In solidarity with, by showing solidarity with this Bharat Jodo final program. We are very much thankful to the people of the country who make this yatra as a grand success. Now the yatra become a great movement of this country.
talk of the country is now about Bharat Jodo Yatra. The slogan which we are raising, the Bharat Jodo Yatra, is become the slogan of this country. Main issues raised through this yatra, you are already aware that unemployment, price rise, and divisive, destructive politics of BJP and union government. After this 130 days of this program, historic program, Congress party got enough input from the people of the country. While we walking, tens of thousands of people, lakhs of people are talking to Rahul Gandhi. We can understand the pain which Indian people are suffering now due to the misrule of Modi government. Demonetization, bad implementation of GST, everything created a miserable life for the common people of this country that have been reflected during the entire tenure of this yatra. The party decided for a big follow-up program for Bharat Jodo Yatra named as Hath Se Hath Jodo Abhiyan, which is going to be start on 26th of January. We initially decided for a 2-month campaign, but sometimes because the yatra is going to be on only 30th, some state selections are going in between. So we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. This is basically what Jairamji told, basically a house-to-house campaign to spread the message of Bharat Jodo Yatra to the common people of this country. All states are prepared for Bharat Jodo Yatra. We send observers throughout the country. They had a series of meetings with the PCC office bearers and DCC presidents. It will be, that's why last day Jairamji released the message of Rahul Gandhi, which is going to house, part of the house-to-house campaign. Today we released the charge sheet against the Modi government. Along with this, respective PCC will make a charge sheet if it is necessary against the respective state governments, where other parties, basically BJP is ruling and other parties ruling. This campaign will spread the message of Bharat Jodo Yatra to house. All the leaders, including seniors and juniors, will be part of this campaign. I already told. Now we had a real field impact study about the country's situation due to the bad policies of this national government. You know the unemployment situation. Modi promised 2 crore jobs per year. Now 9 years almost completed. How much job people got? That is what people are discussing everywhere. The result is unemployment in the 44-year high rate now in this country. Unemployment rate rose to 8.3% in December, highest in 16 months. This is not the Congress report of Center for Monitoring Indian Economy. Education field is collapsed. Fees tripled. Scholarship has been withdrawn. SC/ST scholarships
Maulana Azad National Fellowship Scholarship. This type of scholarship has been withdrawn. Education sector is in a very distressed situation. Basically, demonetization impact, you can see. A study of the Reserve Bank of India in 2018 noted that the micro, small MSMEs have been adversely hit by the goods service tax rollout and demonetization. That is why job loss has happened. 3.5 million jobs lost in labor force of this country. This is also the same report. You know the petrol diesel price rise issue. There is no comparison. In May 2014, the price of petrol was 71.41, diesel was 55.49, and liter crude oil price was that point of time US dollar 105.71 per barrel. In January 2020, the price of petrol was 109.66. Now it is again increased. LPG gas, petrol, diesel price are in all-time high. Farmers are in a very difficult situation to move forward for their ordinary life. All the farmers during this yatra came and complained to Rahul Gandhi ji, we cannot afford these petrol diesel prices, fertilizer prices. Attack on women. You know that NCRB data between 2016 and 2021, there is a rise of 26.35% crime against women. China's infiltration, our border issues, you know. So altogether, we can say that the country's political, economical, social situation is very much pathetic. That these all situation as reflected in this Bharat Jodo Yatra, through the interaction, through along walking, along talking, and other ways. Therefore, we are going to continue this process in this country. Yatra. This Padayatra, we started from January 7th, September 7th from Kanyakumari. Now is ending on 30th in Kashmir. But the spirit which we got from this yatra will not be end on this 30th. It will continue with the different programs, continuous mass contact program, including Haat Se Haat Jodo Abhiyan. This is what I want to say. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। मैं इस अभियान के लोगों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। ये लोगो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, और ये लोगो है भारत जोड़ो यात्रा का। रंग एक ही है, डिजाइन एक ही है, पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज के लोगों में है, जो भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में नहीं था। आपने देखा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा हमारा चुनाव चिन्ह है। भारत जोड़ो यात्रा में ये चुनाव चिन्ह नहीं था। हमारा कहने का मतलब है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था। हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है। मोदी सरकार की विफलताएं।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वो नहीं कहा जा सकता। तो यही महत्वपूर्ण अंतर है भारत जोड़ो यात्रा में और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में। पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जैसा कि मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके बाद तीसरा चरण भी हो सकता है, चौथा चरण भी हो सकता है, पर अब के लिए दूसरा चरण ही कांग्रेस संगठन जुड़ जाएगा। 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं और संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा कि हम घर घर तक राहुल जी का एक पन्ने का संदेशा और ये जो आज रिलीज हुआ है एक पन्ने का चार्जशीट, ऐसे तो 100 पन्ने भी तैयार किया जा सकता था, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा और व्हाट्सएप में 100 पेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, इसी के आधार पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। अभी वेणुगोपाल जी आपके सवाल का जवाब दें। No, who told you Lal Chowk? This is our decision. We didn't discuss anything before that. Finally, we decided this only. This is the only one decision. बिल्कुल। बिल्कुल बेबुनियाद है, ये गलत है। हमारा पीसीसी ऑफिस लाल चौक में है और जब कांग्रेस के नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे पीसीसी ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो और कहाँ फहराएंगे? चौक नहीं फहराएंगे। Not only that, we need a permanent structure on this plaque. So therefore, for that we need a land also. That's why we decided in the PCC office, which is Jairamji, which is actually in the Lal Chowk. We already given invitation. Some of them already responded. Some of them we are waiting for response from others. We will give a final figure. They are all attended. Farooq Abdullah ji attended. That question I already replied earlier. Jairam ji already told you, this is not a yatra relating to election. Our yatra is on ideological basis and issue basis. We don't want to make it as an election event in the 30th. That is, we are very clear on that. This yatra is a different thing. But we invited all of them. I'm very happy to that. Most of the political party represented, they sent the people to walk with Rahul Gandhi ji. Most of them already they have done. And 30th also we invited political parties. They are all welcome to that. That is not going to be an opposition unity for election. We don't want. We are not thinking about it in that way. We are issues already. That's why I told them. We are taking this yatra on the issue. Coming days it will come for election. Then that point of time we will see. All states headquarters, all states are planning, because it is actually it is going to be a 3-month long campaign. Therefore, some separate campaign plan is decided by separately by PCCs.
In some PCC, for example, Jharkhand PCC is hosting on February 11th. Congress President is going to attend that function. In the different PCC is doing in a different way. I spoken to Tariq Gamiji, who is the CPM leader in Jammu and Kashmir. He already agreed to attend that yatra. Because already I told you, what is the view of HUDG, I don't know. But I thought that I got an idea that he already say good words about Bharat Jodo Yatra. That's it. That's a good thing. You will get a clear-cut reply in due course of time, this type of thing. What will be the follow-up of the Bharat Jodo Yatra? Definitely there will be by follow-up. We are figuring it out. At least you have to see the response from the Jammu region yesterday and day before yesterday. During the rain was there in the morning, 7 o'clock. During the rains also, tens of thousands people are there to witness this yatra in Jammu region. Yeah. Not only security issue, I already told, we want a permanent structure. If you go after 100 years, somebody in next generation going there, they have to see the structure. Therefore, we need to have a permanent structure, but therefore some logistics we needed. That is why we decided our own party office, which is actually in the Lal Chowk area, there we have to do it. This is block level program, brother. You have to see the details of the Bharat Jodo Yatra. Block level, all the leaders of the Congress party will lead from block to top. That I already told. We give an invitation to all the political parties who can like-minded political party who can join this yatra. It is up to them to decide whether they have to come or not. We are waiting. That already cleared. We have already cleared that issue now. There is no further details is needed for that. No. End this press conference here. राहुल जी जम्मू में 24 तारीख को प्रेस को संबोधित करेंगे. आप लोग सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं. 24 तारीख को जम्मू में होगा
और जम्मू से थोड़ा दूरी पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं भिजवा दूंगा। और 30 तारीख को श्रीनगर में वो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शुक्रिया। That is on 30th. That's 30th. No, 30th is not this. 30th is not this. 30th is only the 30th 10 o'clock flag hosting. After that 11 to 2 public function. There will be an interaction. आप सबको हमारा नमस्कार। ये बहुत ही खास प्रेस वार्ता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का परचम खेल के जगत में लहराया है, वो आज इस मंच पर हैं। किसी और कारण से होते तो हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाड़ियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए, बताने के लिए और सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं, जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत कुछ कहने से पहले मेरे साथ मंच पर कृष्णा पूनिया जी हैं, जो भारत की पहली वुमेन एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए, और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है, तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था, और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछे कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना
बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक है स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूं कृष्णा पुनिया जी को कि वो खिलाड़ियों के बारे में, महिलाओं के बारे में और क्या हो रहा है उस सच को उजागर करें। नमस्कार सभी साथियों को। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब समाज से कोई लड़की निकलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है, और वो उन जद्दोजहद से निकलकर दिन रात एक करके पसीना बहा के, खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है। और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण जी, वो यौन शोषण करते हैं। और ये उस बेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो। और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है? और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है। तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे? और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है? मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है, और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र भाई को कि वो इस पर अपना वक्तव्य दें। जी नमस्कार आप सबको। थोड़ी देर पहले मैं जंतर मंतर गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरे साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहाँ पे। और एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहाँ पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा।
लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, जो अखबार लिखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रणेंद्र सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी। क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर। हॉकी के दिलीप तुकरी जी। और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। रेसलिंग फेडरेशन में जो हो रहा है इससे सबको सबक सीखना चाहिए कि, और जैसा कि दोनों खिलाड़ियों ने कहा, ये सिर्फ यहां पे विशुद्ध हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। दो खिलाड़ी आपको बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए लड़ना समाज से, परिवार से। सोचिए उन माँ बाप को जिनको आज अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजना है, वो कितने आशंकित होंगे और क्या उनके मन पर बीत रही होगी। आपके कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। सुओ मोटो प्लीज। क्या आपको लगता है कि जो खेलों के मुखिया होते हैं वो नेताओं को नहीं होना चाहिए, उसकी जगह खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए इस देश में? दोनों लोगों से आंसर करा। हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। खिलाड़ी अगर एसोसिएशंस में होंगे तो खिलाड़ी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और जो एथलीट्स की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा रहेगी तो उसमें और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक खिलाड़ी की भावना को समझ सकता है, और खिलाड़ी इस फेडरेशन में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। बिकॉज एक तरह से ढोंग तो किया गया था, बिकॉज कई बॉक्सरों को भी इस फेडरेशन का एक उसमें बनाया गया था हिस्सा, लेकिन उनको कभी भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जैसे बॉक्सिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लड़कों ने बताया कि भाई साहब हम भी हिस्सा थे उस बॉक्सिंग फेडरेशन का, लेकिन हमें कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो अगर कोई खिलाड़ी अगर किसी उस फेडरेशन का हिस्सा होता है तो बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। पर हम कहाँ मार खाते आप सबको मालूम है। जी राहुल गांधी ने जब यूपीए की सरकार कोशिश करी थी अजय माकन में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनके जरिए कि खेलों से नेता बाहर हो जाए और खिलाड़ियों को एक सवाल दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा सहयोगी दल भी नहीं माने और वो बात पूरी नहीं हो पाई। अजय माकन का जो बिल था कोशिश की वो नाकामयाब रही। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत है, आप लोग समर्थन देने को तैयार है कि नेता खेल संघों से बाहर हो और खिलाड़ी कमान संभाले? हम समर्थन तब भी देने को तैयार थे, और आपका बिल्कुल कहना सच है कि ना सिर्फ हमारे घटक दल बल्कि एक राजनीतिक रूप से इससे आम सहमति नहीं बन सकी थी तब। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपका मन आता है, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है एक लॉ बन जाना चाहिए, आप लॉ ऑर्डिनेंस से बना देते हैं और अध्यादेश से वो पारित होकर कानून बन जाता है। लेकिन मैंने तो आपको फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको हिंदुस्तान की तमामों स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, राइफल हो, मैंने तो आपको सबके नाम गिना दिए, और इस सब पर भाजपा के नेता बैठे हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है? और पॉलिटिकल सहमति इस पर बननी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी बात सही है, इस पर डिबेट होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो अच्छी बात रहेगी, लेकिन आज का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है।
ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ है। ये ओलंपियंस हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, और ये बाहर आकर कह रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस बात से अवगत देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी 1.25 साल से हैं, और बृजभूषण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बेशर्मी की और असंवेदनशीलता की कोई हद है इस सरकार में। आपने अजय मिश्रा, नैतिकता कहां है? नैतिक धुरी ये कहती है आपका नाम आया और ऐसे आक्षेप में आया, आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता तो सर्वोच्च पद की भी पूछी जाएगी ना। आज जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 में इस मामले से अवगत कराया था, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी ने क्या किया? क्यों आंख पर पट्टी डाले वो आज बैठे रहे कि ये खिलाड़ी सड़क पर सार्वजनिक रूप से उतरने को मजबूर हुए हैं और आज कुछ मीटिंग्स करी जा रही हैं। I think the Congress's first and foremost demand is that the federation should be dissolved with immediate effect. Brajbhushan Singh should have resigned yesterday and not today. But the biggest demand that we want to raise for public interest is that women need to be made safe and secure. I mean, these are some of India's most decorated athletes who've come out in the open and said that they are being forced for sexual harassment. What more do we want our girls to say? And I think the biggest question before the country today is that when Mr. Modi got to know the gory details of what was happening in the Wrestling Federation of India in October 2021, and Vinesh Fogart is on record to say that she briefed the Prime Minister along with her family, what did he do? Why did he not speak? Why did he not have an inquiry done? Was there an interdepartmental inquiry done? Was Mr. Brajbhushan Singh summoned? Was he asked to clarify his stand? There are many questions today, and I think that is our foremost demand. This country needs to know the truth, and more than anything else, please imagine parents of girls who are in sports. What are they going through at this moment? I have two celebrated, decorated sports stars sitting next to me. They have told you how they feel about it. आपको लगता है कि हिंदुस्तान की वो ध्वजवाहक, वो सेलिब्रेटेड एथलीट्स जो ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं, एशियाड में गोल्ड जीते, वो हमारी साजिश के तहत आकर सड़क पर बैठेंगी? ये वो शेरनियां हैं जो बड़े बड़ों के खुद चारों खाने चित्त कर देती हैं, उनकी आंख के आंसू नहीं दिख रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को? Any other questions on this? I think more than anything else, the concise of this government, not one spokespersons, by the way, have withdrawn from television debates. No BJP spokesperson is coming for a debate on this very issue. No BJP supporter is speaking on this. Not a single minister has put out a word condemning this incident. You have India's most celebrated sports stars sitting at Jantar. It is and more than anything else, the institution meant God, sports persons, they do and to lodge any NCW को तो आपको ट्वीट कर दीजिए अगर बीजेपी तो वो लपक के पहुंच जाती हैं NCW, और क्यों नहीं? अब वो इंतजार को कंप्लेन करेगा तो उसका मुझे मामले का सुमोटो करना चाहिए फेडरेशन, और एक इंक्वायरी चाहिए कि इस देश भी ये सारी बातें सुन बैठे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।